फिर भी मगर आप मैं आपसे पूछूं, एक लड़की अकेली जा रही है, you know, in the church, that was the scary part. But even the visualization of the opening shot of her running towards, it's just fantastic. What was the most hard storyboarding for you जब आप कर रहे थे? Hard was just to have an idea about this whole video, but the song is so beautiful and the voice of Pratibha is so golden. So it was, I mean, the overall music and singing was so inspiring. The lyrics were fantastic. So I think it all started coming in quite naturally. So I didn't find much of a challenge because I've been working with Salim for a long time. Pratibha has been, we've been working together for a long time on stage. So she's a fabulous actor also. I've directed her. So it was, I mean, yes, but the emotion that she could bring out in the video was really, I was surprised too, you know. So great, I think overall all the actors, musicians, everybody, Deepak ji, everybody has done a fantastic job on this. I'm happy and I'm really happy to be a part of this project. Thank you. Thank you. Let's call the mellifluous voice and the most gorgeous singer that there is, Pratibha Singh Baghel. Please come up on stage singing, because that's what I want to hear from you. गाते हुए आऊँ, मतलब जश्न मनाते हुए आऊँ गम का, तो पहले इस गाने से ही शुरू करती हूँ। जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते, जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते, दिल से दिल ले गए वो निकाल के जाते जाते, जश्न गम दे गए। क्या बात है। अब क्या बोलूं, पहले तो हर बार ये कहती हूँ कि नर्वस हूँ। I don't think so. लग रहा है? लगता नहीं है, ये वही वाली बात है कि ये तो एहसास है जो महसूस होता है, दिखता नहीं है। गाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, गाने के बाद सब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती है। पहले तो इतनी बारिश में जितने लोग भी आ सके उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, और इससे ज़्यादा मैं आप सबकी कृतज्ञ कभी नहीं हो सकती हूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि ये पापा मेरे हमेशा यूज़ करते हैं ये वर्ड, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी शब्द है, एंड आई एम इंडेप्टेड ऑफ योर प्रेजेंस टुडे। थैंक यू। also जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो आए हैं, of course प्रेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, पर इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं जो इतनी बारिश में आए हैं, so big thanks to Prithvi, to Paras, to Jazin, to Prashant, to everyone out here, Sanjay, जी, Durgesh, yes, स्वरांजय, everybody. they are such incredible musicians and artists. हमारे Seven Heaven की टीम से भी Ezekia and Sanket are there. Thank you guys for being there always. Deepak ji could not be here due to, of course, rains and इतनी सारी problems सबकी ज़िंदगी में चलती रहती है, I understand. और we miss everybody who could not be here today. And let me talk a little about the song. ये गाना शुरू हुआ था, and Vipin ji is also here. Thank you for being here. Thank you. ये गाना जब शुरू हुआ था तो सलीम भाई से एक बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक गज़ल करना है, लेकिन टाइटल मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ना जश्न गम जैसा एक टाइटल चाहिए, या पैगाम इश्क या जश्न गम, ऐसा कुछ आपने बोला था। और ये लॉकडाउन के दौरान की बात है, और उसके बाद में व्हाट बेटर दैन तुरास जी, इतने सारे हमने इनके गाने सुने हैं, एंड ही जस्ट made it so easy for this kind of composition to, you know, blend in so well. And सलीम भाई, आपकी composition की क्या ही बात करूँ। मैं you know तुरास के बारे में अगर कहूँ तो ये गाना उन्होंने इतना जल्दी लिखा, you know, और जनरली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि
यू नो बहुत फास्ट लिख दिया तो यार मतलब ठीक होगा, यू नो इट्स ओके, बट नो हर इसमें जिस सादगी में भी जो गहराइयाँ है ना, गहराई है वो बहुत कमाल की है. आई रियली रियली लव वर्किंग विद हिम. He was very quick, a man of few words, but some great thoughts. Great thoughts. नहीं किया जो आपकी कंपोजिशन थी, मैंने वही किया. सारे लिरिक्स उसमें छुपे हुए थे और कुछ भी नहीं था. सर बता दो इसलिए वो इतना जल्दी हो नहीं गया. अदरवाइज And it is also my first time working with Turaj ji. Thank you. I have the honor to sing your ghazal. सभी ने एक दूसरे के बारे में कहा, but प्रतिभा तो वे सल्यूट. ये कॉम्पोजिशन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी कंपोज्ड इट, बट जब प्रतिभा ने इसको गाया मैंने सोचा, आई मीन ऑब्वियसली आई न्यू दैट शी विल बी एबल टू ब्यूटीफुली सिंग इट, पर जिस आसानी से और जो प्यार से प्रतिभा ने जब माइक पर उसने उसको शुरुआत की गाने की, इट फेल्ट लाइक यू नो गाने को एक यही आवाज़ इनके लिए ही बना था इन्होंने. और जिस तरह से एक सिंगर, एक तो होता है कि गायकी बहुत है इस गाने में, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, बट गान नहीं करना, गान कंट्रोल करना, ये एक मैच्योर्ड आर्टिस्ट ही समझ सकता है. वो आदमी करते करते ही सीखता है. यू नो गायकी तो ऐसी चीज़ है जो आदमी गायक जो वो करते करते ही गायक बनता है. शुरुआत में तो आपको सीधा सीधा यू नो 100 मीटर्स भागना है, जब पर दौड़ते 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 आपको पता लगता है कि कैसे मैराथन में भाग सकते हैं. सो ये प्रतिभा की ये खासियत है, शी इज डन इट ब्यूटीफुल. Very sweet and very kind of you. We are missing Suleiman also. He also could not be here due to rains. मुझे एक घंटा लग गया जूस से. दीपक जी ने इतनी खूबसूरती से इसको प्रोड्यूस किया है. जो उनकी एक थॉट है हमेशा हर गाने के पीछे जो एक होती है, वो उतनी ही खूबसूरती से हर गाने में देखने को मिलती है. एंड दिस सॉन्ग इज नो लेस. तो वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू नो हम सब लोग एक साथ में. एंड कमिंग टू राजीव सर, उमराव जान अदा में पहली बार आपके थ्रू राजीव सर से मुलाकात हुई थी, और उमराव जान के वक्त पहला गाना हम लोगों ने किया था हम रहे या ना रहे फॉर उमराव जान. एंड people love that song so much. It was written by Irfan Siddiqui. और राजीव सर के साथ में ये दूसरा गाना है ऑफिशियली जो हमने शूट किया है. बट फर्स्ट रिलीज आफ्टर हम रहे या ना रहे. एंड राजीव सर ने मुझे जब इसका एक कोड भेजा था कि इस तरह से हम इसे शूट करने वाले हैं. श्रेयस इज ऑल्सो हियर. Hi Shreyas, very talented composer. जब सर ने मुझे इसका एक कोड भेजा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी. आई टोल्ड हिम कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी सर, आई जस्ट कांट डू इट. तो इज लाइक नो यू कैन, यू हैव डन उमराव जान अदा एंड ऑल दैट. लेकिन पता नहीं, मुझे लगा कि कैमरा में एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है. बट आई थिंक सर यू मेड मी डू इट एंड you got the best out of me, I think, on this project. So thank very you for humble. making इतने म्यूजिक वीडियोस ऑलरेडी शूट कर चुकी है और फिर भी कह रही है कि नहीं मैं बहुत नर्वस थी और यू नो मुझे बहुत. शी इज ऑलरेडी सीजन्ड. मैं कह दूँ ये बिकॉज ऑलरेडी वी सीन अ लॉट ऑफ रिलीजेस जो प्रतिभा ने किया है. इसके पहले कौन सी आई थी एल्बम Inheritance and बोले रहना आई थी. सो मच शी इज डन ऑलरेडी. और अभी तो मतलब यू नो, और ये मैं जैसे मैंने कहा कि आदमी करते करते ही सीखता है, यू नो. एंड शी इज ऑब्वियसली वी हैव सीन द जर्नी, यू नो, when she started off and now she's come to a point where very soon she's going to be starting her own film production and acting. मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो जर्नी चलती रहे बस यही काफ़ी है. मंजिल पे मुझे नहीं पहुंचना है अभी, और शायद कभी नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है. एंड आई वांट टू एंजॉय दिस जर्नी टिल आई लिव. ऑल्सो एक चीज़ और है कि जैसे ही सलीम भाई ने सबसे शुरुआत में बोली है कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त के लिए और हम सब के लिए एज म्यूजिशियंस, as independent musicians also. Sufi Score is a platform where they've always supported Asian music, but most importantly Indian classical, Sufi, ghazals and all these genres that was not much promoted in films and other platforms. So we are really honored and you know feel privileged to be having this platform without any barriers of music and thoughts.
So thank you Sufi Score for existing. Ajay ji, Purvish, they take care of the things from you know, सात समंदर पार से वो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज करते हैं from UK, and thank you so much. राजीव भाई साहब अपना बिल्कुल नाम कहीं भी सुनने के इच्छुक नहीं होते हैं, मैं तो कह ही लेकिन देता but हूँ। we really we are here, all of us are here only because of your dedication for music. So thank you Prithvi, Paras Bhaiya, everybody who I can see, Jazim, Sanjay ji, everybody who's here, and thank you Archana. Archana, thank you so much. Big round of Thank applause you. for Archana. You know, I want to say something because Sufi Score लंदन से चल रहा है, जैसे मैंने कहा अजय जी, और मैं भी विदेश में पैदा हुई थी. I think there's two kinds of music जो आपके हार्ट को टच करेगा. एक जो आप इबादत में बोलते हो, आप खुदा के लिए कहते हो, और एक है मुझे मेरे हिसाब से गज़ल. It's very pure, it's very very innocent, and it has a truth about it जो हर इंसान उस गम से गुजरता है. So I really think what you and Salim ji said, that this is a very important genre. ये रूट है हमारे, ये रूट्स हमको स्ट्रांगली जड़े हुए रखेंगे एंड हमारे इमोशंस को एक आउटलेट देंगे. So thank you Sufi Score, thank you all of you for making it so gorgeous, so beautiful. Can we have you stand here in the front? The lights are better for a picture. Also, please call all my brothers and sisters, please. Yes, please. We'll have you first. हाँ, एक वो आते उधर टाइम लगी जाएगा. First we have you. आप पहले आप करते सब आइए ना, प्लीज We line up. कम ना करें. मनोज Come on, everyone, smile, please. Cool मत बनो. WhatsApp कर लो एक दूसरे को. Thank you. Can we have you sit in the chair? We want a quick Q&A with. Are you mad? Yeah, come on. No way. Everyone's here. What for? Look at those chairs. They look so gorgeous. They're waiting That's for you. true, but like. And with that kurta, you better take a nice seat. It looks. Irshad. This song है, it's a beautiful, beautiful composition, very rare to hear in today's time. What do you have to say the entire making of the song? I think this is some. मेरे हिसाब से ये this is the need of the hour. जब भी हम कुछ म्यूजिक बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि let's try to make a good song rather than making a hit song. Good song always becomes a hit. Hit में कोशिश करते तो कभी मिस हो जाता है वो. तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें एक अच्छी. तो बहुत खुशी हुई जब मैंने प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती हैं ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस. इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. सो थैंकफुल फॉर दैट. ऐसी compositions, ऐसा setup, ऐसे गाने आपने कहा बहुत rare है. What do you have to say about the changing trends today? Because ghazal is almost presented in a newer manner is a rarity. ये मैं नहीं मानता हूँ. ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. I mean from you can
let's say from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to to Ghulam Ali ji to Jagjit ji. It's a tradition, and now beautifully जो ये torch bearers है, वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग, और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना, वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है गज़ल. मेनली it's centered around words and poetry, and that leads to the question to Turaz. Natural लगता है. लिरिक्स है बहुत मीनिंगफुल है, एंड ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव. आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती, गज़ल कहाँ नहीं होती. हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती है. जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़्म होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही, ऐसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं. वो हर दौर में रही हैं. और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. So well said. क्या बात है. Well said. डायरेक्टेड वीडियो, इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नोवेल, और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइटल और लिरिक्स गाने के जब सुने थे. तो पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में. तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ of the composition, the words, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी-कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. If you're sad, you do a lot of things today nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आँखों से naturally, that is commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, Same with the singing. performance. स्टूडियो में जिस तरह से प्रतिभा Yeah. ने इसको इतनी आसानी से गाया है ना, कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं. मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं. But the way she sings it, it's very effortless. Yeah. गायकी इतनी, मतलब शी सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज़ ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है प्रतिभा. Thank you. Even in the song, as always, कितना challenging रहा गाना फिर feature करना, and the emotions that you have to obviously get them out also, because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on
2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So दीपक जी एंड गौरव जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. एंड इट वाज डेफिनेटली दीपक जी's आइडिया एंड हिज विजन. Also then there is प्रशांत in this गज़ल. हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. एंड देन एंटायर 7 Heaven स्टूडियो टीम. राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो आफ्टर ऑल, yes, also Purbain ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया पहले. ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी. आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है. तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो दो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ. और 2 ही म्यूज़िकल्स में एक काम किया है आज तक, एक मुग़ल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग. Great job. Thank you, Parul. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you. Thank you. वाह, इनके बिना इनको भेज भी दिया. बताइए. इनके बिना फ्री इन्होंने कोई पिक्चर नहीं लगती है. एक ही फ्री होर्डिंग दिया है वैसे अभी तक. जिनके सारे होर्डिंग्स हमारे आसपास आपके घर के वेरी क्लोज, वेरी नियर योर हाउस. बट थैंक यू योगेश जी. मैं आप सबके साथ फिर से एक बार ये गाना पेश करना चाहूंगी. इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुली. थैंक यू. योगेश भाई आपको Yes, योगेश जी, आप लेफ्ट राइट में बड़ा स्ट्रेस. अरे नहीं, एक नहीं, आप लोग प्लीज सोलो इनका. योगेश भाई आप सवाल कीजिए. श्रुति स्पोर्ट आज गाना जो लॉन्च में आप आए हैं उसके लिए एज गेस्ट परफॉर्मर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम. सलीम भाई सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त है. इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ. और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए हैं. और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके साथ मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका दोनों जन का नेचर है. इसलिए मेरे पास बहुत अर्जेंट काम था, छोड़ के मैं आज आया. वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू योगेश जी. बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आभार. हमेशा जिस तरह से योगेश भाई सपोर्ट करते हैं ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अच्छे काम को. बड़ी पिक्चरें तो करते हैं, बड़े बैनर्स तो करते हैं, बट साथ में जितनी भी इंडिपेंडेंट लोग के साथ में जो काम करते हैं ना वो काबिल तारीफ है. थैंक यू योगेश जी. थैंक यू.